Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you all are fine and taking care of your health students. Now this is a winter season, so better to take more care of your health and stay at home. So today we are going to start class 4th EVS chapter number 16, a busy month. Before we start this chapter, today we are going to do the reading work plus explanation. But before this, I have sent you the part 1 of this chapter. Part 1 मैंने आपको भेजा था. That was the introduction part. कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आने वाला है आपको इस चैप्टर में, क्या पढ़ोगे आप. So what was there in that? It was the bird's nest, birds' beaks, their feet, and how they are making their nest. That we are going to read in this chapter. So student, this chapter is written by the writer to the children. So now we will start the reading work. So first of all, open your textbook, page number 127, and keep the pencil with you. Okay student? So now we will start. First we will do the reading work, then I will give you the explanation. Now this story is written here in Bal Mandir, Bhavnagar, and it is written on 30th April 1936. Now we will do the reading work. Keep your pencil and read after me. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. Some of the birds have already made their nest. In some of the nests, the eggs have hatched. The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. Now I will give you the explanation of this part. Yes students, now what is the time? It is afternoon. कब का टाइम है? आफ्टरनून है. कितना बजा है? 3 o'clock है. Now there are no clouds, मतलब आसमान में बादल नहीं है. और sun is burning hot, मतलब बहुत तेज धूप है. It means which season it is? It is a summer season. Now the sparrows, doves and sunbirds have started working. अभी आप यहाँ देख रहे हो किसकी पिक्चर है? डोव की है. आगे आपको सनबर्ड की, स्पैरोज की, सबकी पिक्चर देखने को मिलेगी. और उन लोगों ने क्या किया है? They have started working in pairs, मतलब उन लोगों ने पेयर्स बना लिए हैं. और उन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया है? नेस्ट. नेस्ट मतलब घोंसले बनाना उनने स्टार्ट कर दिया है. और सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड, और कुछ बर्ड्स का जो नेस्ट है वो पहले से ही तैयार हो गया, मतलब उन लोगों ने पहले से ही नेस्ट की तैयारी कर ली है. और इन सम ऑफ द नेस्ट, अभी कुछ जो घोंसले हैं उसमें क्या है? एग्स हैव हैच्ड. हैच्ड मीन्स अंडे फूट गए हैं, अंडों को में से बच्चे बाहर आ गए हैं. ओके स्टूडेंट? तो हैच का मतलब जब अंडे टूटते हैं और उसके अंदर से जो बच्चे निकल के आते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हैचिंग. द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी. और जो पेरेंट बर्ड है मीन्स जो छोटे बच्चे जो अंडे से बाहर निकल आए हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने क्या किया है? उनको फीडिंग करना स्टार्ट किया. फीडिंग मतलब वो लोग जो चिक्स होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, चिड़िया के बच्चे होते हैं, मुर्गी के बच्चे होते हैं, जो भी होते हैं, उनको क्या किया है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब उनकी जो मदर है वो क्या लाती है उनके खाने के लिए? इंसेक्ट्स लेके आती है. और दूसरी चीजें भी लेके आती है, सीड्स और जो वो खा सकते हैं वो लेके आती है. क्यों लेके आती है? क्योंकि अभी जो चिक्स हैं वो बहुत छोटे हैं और वो अपने से खाना ढूंढने नहीं जा सकते हैं. तो अभी जब तक वो उड़ने लायक नहीं होंगे और अपने से खाना ढूंढने लायक नहीं होंगे, तब तक क्या करेंगे? उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको फीड करेंगे, उनको खाना लाके देंगे और उनकी देखभाल करेंगे. नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 128. Yes students, here see this is only on page number 126. In our courtyard also there is a baby dove. There is another egg in the nest but it has not hatched yet. Now what is the writer telling? Writer क्या बता रहा है कि उसके जो कोर्टयार्ड है, मतलब जो बाहर की जो जगह है, घर के बाहर जो एक लॉबी जैसी बनी है, वहां पे क्या है? बेबी डोव है. ये ऐसा, ये डोव है, उसके बेबी उसके है, बेबी डोव है, उसने क्या किया है? और देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट, मतलब एक एग में से बेबी निकल चुका है
और एक एग जो है वो अभी बाकी है, वो अभी तक हैच नहीं हुआ है। बिफोर आई हैव टोल्ड यू दिस इज हैच। तो अभी हैच का मतलब क्या है कि वो अंडा टूटा नहीं है और उसमें से बेबी बाहर नहीं आया है। तो अभी क्या है, राइटर ने क्या बताया कि एक अंडे में से बेबी आ गया है और दूसरा अंडा अभी भी टूटा नहीं है, उसमें से बेबी आना बाकी है। नाउ वी विल मूव टू द पेज नंबर 127. This is on page number 127. Hope you all have opened that page. Now we will start the reading first. On the way to Gopal's Bhai's house, there are many stones along the roadside. In the space between these stones, an Indian robin has laid its egg. Bachchu Bhai showed it to me. I looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. On top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. This is how the robin makes its nest. What a soft and cozy home for its chicks. The robin is not like the crow. A crow's nest is made of all kinds of things, even pieces of wire and wood. Now students, the writer, what is the name of the writer? The name of the writer is Gijju Bhai. He is writing the letter. So when he is going to Gopal Bhai's house, means he is going to his friend's house. So what he saw, there are many stones along the roadside. Along the roadside means रोड की जो साइड होता है ना, उसके साइड में बहुत सारे स्टोन्स थे, पत्थर थे और उनके बीच में स्पेस था. स्पेस मीन्स जगह थी पत्थरों के बीच में. एंड इंडियन रॉबिन, अभी आप यहाँ देख सकते हो ये बर्ड है इंडियन रॉबिन. शी इज हैविंग ओनली सम कलर्स, कुछ कुछ कलर्स है, बाकी वो पूरी ब्लैक दिख रही है. एग्स लेज इट्स एग. अभी इंडियन रॉबिन ने कहाँ पे एग्स दिए थे, अंडे कहाँ पे दिए थे, स्टोन्स, स्पेस जो होता है ना स्टोन्स के बीच में, वहां पे उनने एग्स दिए थे. बच्चू भाई शोड इट. अभी जो गिज्जू भाई है उनके साथ में कौन जा रहे हैं, साथ में बच्चू भाई उनके साथ में जा रहे हैं. किसके यहाँ जा रहे हैं, गोपाल भाई के घर में जा रहे हैं. तो उनने उनको क्या दिखाया, उनने रॉबिन, इंडियन रॉबिन के एग्स दिखाए, नेस्ट दिखाया. तो उन्होंने क्या किया, आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर्स. किसने देखा, गोपाल भाई ने. बाइनोकुलर्स होते हैं ना जिससे हम दूर की चीज पास देख सकते हैं, उससे देखा. तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे एक नेस्ट था, घोंसला था, काहे का बना हुआ था, ग्रास का, घास का बना हुआ था. एंड देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, सूखी घास थी. उस घोंसले में क्या था, ऊपर पे सूखी घास थी, पेड़ के रूट्स थे, जड़ थी, वूल था, ऊन होता है ना जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, वो था. हेयर्स थे, हेयर्स मीन्स हमारे जो सर के जो बाल होते हैं वो थे. एंड कॉटन वूल मीन्स जो कॉटन के कपड़े जो फट जाते हैं ना, हम फेंक देते हैं, वो वहां पे था. दिस इज हाउ द रॉबिन मेक इट्स नेस्ट. इस तरीके से जो इंडियन रॉबिन था उसने अपना क्या बनाया था, नेस्ट बनाया हुआ था. ओके स्टूडेंट, सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि रॉबिन जो होती है, इंडियन रॉबिन होती है, उसका नेस्ट किस चीज से बनता है, सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल. ये चीजें वो यूज करके अपना नेस्ट बनाती है. एंड व्हाट इज सॉफ्ट एंड कोजी होम. अभी उन्होंने क्या बोला कि कितना सॉफ्ट घर उसने अपने बच्चों के लिए बनाया है. द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो. अभी जो रॉबिन होता है ना, इंडियन रॉबिन, वो क्रो के जैसे नहीं होता है. क्यों, क्योंकि जो क्रो का जो नेस्ट होता है ना, वो काहे का बना होता है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, मतलब उसमें पीसेस ऑफ वायर एंड वुड. मतलब क्रो जो अपना नेस्ट बनाते हैं वो काहे से बनाते हैं, वो लोग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स यूज करते हैं. मतलब वो वायर भी ले आते हैं, वुड भी ले आते हैं, कोई भी हार्ड चीज उनको मिलती है तो वो लाके अपना नेस्ट बना लेते हैं. और जो इंडियन रॉबिन होती है वो अपना नेस्ट सॉफ्ट चीजों से बनाती है, और जो क्रो होता है वो अपना नेस्ट कोई भी चीजों से, हार्ड चीजों से बना लेते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल प्रोसीड द फर्दर रीडिंग. I saw a baby bird in the robin's nest. It was sitting with its beak wide open. The mouth was red from inside. In a little while, the robin flew
to the nest and put something in the chick's open beak. May be a few small insects. By then it was evening. The robin settled down with its chick. You know that the quail sings sweetly. Do you know that this bird does not make its own nest? It lays its eggs in a crow's nest. The crow hatches them along with its own eggs. Yes students, now what is the writer telling? Writer क्या बता रहा है? I saw a baby bird in the robin's nest. अभी writer का नाम क्या है? Yes student, what is the name of the writer? Yes, very good. The name of the writer is गिज्जू भाई. तो वो क्या बता रहे हैं कि मैंने क्या देखा कि बेबी बर्ड था, मतलब रॉबिन के नेस्ट में अंडे फूट चुके थे और उसमें से बेबी बाहर आ चुका था. तो उनने बेबी बर्ड देखा and it was sitting with its beak wide open. Wide means वाइड का मतलब होता है बड़ा सा मुंह खोल के. जो बेबी था वो अपना बीक मतलब चोंच, ये जो बीक का मतलब है चोंच, और उसने अपने चोंच को पूरा खोल के रखा हुआ था. वाइड क्यों खोला हुआ था? ताकि उसकी मदर उसके मुंह में खाना डाल सके, क्योंकि अभी वो बेबी है तो वो अपने से खाना ढूंढने नहीं जा सकता. तो द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड. अब रॉबिन बर्ड जो होती है, इंडियन रॉबिन बर्ड, उसके जो बेबी का जो मुंह है, अंदर का जो हिस्सा होता है वो कौन से कलर का होता है? इट इज ऑफ अ रेड कलर. कौन से कलर का होता है? रेड कलर. स्टूडेंट्स रिमेम्बर इट, आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है. ओके, सो वॉच द वीडियोस केयरफुली. इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट. अभी थोड़ी देर में क्या हुआ? राइटर ने क्या देखा कि जो रॉबिन बर्ड थी वो उड़ के अपने नेस्ट के पास आई और उसने अपने चिक्स जो था, उसका जो चिक था उसके ओपन बीक में, उसकी जो चोंच खुली हुई थी उसमें उसने क्या डाल दिए? स्मॉल इंसेक्ट्स डाले. छोटे छोटे वो इंसेक्ट्स लेके आई थी. इंसेक्ट्स मीन्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जो वो अपने चोंच में लेके आई थी और उसने अपने बेबी के मुंह में डाल दिया. और तब तक क्या हुआ? इट वॉज इवनिंग, मतलब शाम हो गई. तो रॉबिन बर्ड ने क्या किया? वो अपने बच्चों के साथ में बैठ गई. द मीनिंग ऑफ सेटल्ड इज कि वो अपने बच्चों के पास में बैठ गई. अब वो शाम में अपने बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे उसके बहुत छोटे थे. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कोयल. ये किसकी पिक्चर है? कोयल की पिक्चर है. इट इज इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कुकू. सो आपको पता है ना कि कोयल कैसे गाती है? सिंग्स वेरी स्वीटली. कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है और वो बहुत प्यारा गाती है. सो अभी आपको पता है क्या बच्चों कि जो कोयल होती है ना वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती है. ओके, वो अपना नेस्ट नहीं बनाती. वो अपने अंडे किसके नेस्ट में देती है? क्रोज के नेस्ट में देती है. कौवा जो होता है ना उसके नेस्ट में वो अंडे देती है और कौवा ही क्या करता है? उसके अंडों को हैच करता है. मतलब उसको कौवा उसके अंडों के ऊपर बैठता है और फिर वो अंडे टूट जाते हैं तो उसमें से वो बच्चे निकल के आते हैं. और जो क्रो होता है, क्रो ही उन बच्चों को बड़ा करता है. ओके स्टूडेंट, सो नाउ यू कम टू नो. आज आपको ये पता चल गया ना कि अभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि विच बर्ड डज नॉट मेक इट्स नेस्ट. कौन सी बर्ड अपना नेस्ट नहीं बनाती है? सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट द नेम ऑफ दैट बर्ड इज कोयल और यू कैन राइट द कुकू ऑल्सो. ओके स्टूडेंट, सो वी हैव रीड अबाउट द विच बर्ड. वी हैव रीड अबाउट द कोयल, क्रो, इंडियन रॉबिन एंड डोव. Okay, hope you all have understand nicely up till here. Yes students, now hope you all have understand the up till here nicely. If any queries you can ask me in the comment box. आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. एंड स्टूडेंट्स वॉच द वीडियोस नाइसली एज वी आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन इन फ्रॉम द मिडिल ऑल्सो. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Soon we will meet for the next part of this chapter. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.